Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Vicky sir. Okay. So let me know audio video. Is it clear? Okay. So from today we have started the practice session of C programming as well. So it is my consider it as a request कि आप इसकी recording जरूर देखें. ठीक है, रिकॉर्डिंग देखें. यदि आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं सो इट विल हेल्प यू टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो आप मस्ट है ये मेरी तरफ से तो कि आपको रिकॉर्डिंग देखनी ही है एंड आपको प्रैक्टिस कोर्स साइमल्टेनियसली कवर करना है ना. तो एनी हाउ आप 2 का स्पीड में देखिए, 3 के स्पीड में देखिए, मगर आप इसको कंप्लीट करिए. ओके, चलिए तो स्टार्ट करें आज का सेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज फंक्शन. ठीक है, आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा इट इज ऑन फंक्शन. सो देखिए, कैन यू गिव मी द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? एनी आइडिया व्हाट इज अ फंक्शन? What is a function? It is a set of programs. ठीक है, it is group of statement that perform a specific task. Yes sir. So हम इस sentence को थोड़ा सा correct कर लेंगे. It is not a set of function, it is set of instructions, or we can say it is the set of statement that is used to perform a specific task. So suppose I want to do the sum of two numbers. So I will write a function sum. If I want to calculate a factorial, so for factorial, now I will group all the statement that is required to calculate the factorial. In some function, I will write all the statement that are required to calculate the sum. So every function is group of instruction. ठीक है, क्या है? It is the group of instruction that perform a specific task, like factorial, like sum. Sum is a specific task. Factorial is a specific task. So group of statement that perform a specific task. Like you can see in this example. ठीक है, यहाँ जो एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है, here we have a sum function. ठीक है, अच्छा, whenever we write a function we have to follow some rules. वो मैं आपको आगे बताती हूँ. But see, here we have a function name is sum. This is the parameter list. ठीक है, the variable that is required for the processing. Integer c is given, then we are doing the calculation of this and then we are printing the sum. ठीक है, so now all the statement number 1, 2, 3 and 4, it is the group of statement. ठीक है, ये आपका group of statement है that is performing a specific task, और उस स्पेसिफिक टास्क को हम क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ ए एंड बी. ठीक है, क्या परफॉर्म कर रहा है? स्पेसिफिक टास्क, सम ऑफ ए एंड बी. इज इट क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन. ठीक है, आपका होगा फंक्शन. नाउ
we have two type of function, we already know, ठीक है. First is called the user defined या predefined. Second is called the first is called the predefined or built-in function, and second is called the user defined. So like predefined, we are already working with them. Like printf, it is a predefined function in the compiler and C programming. Scanf, it is predefined function. Okay, gets, to get the string, it is a predefined. Then puts, it is a predefined to print the string. So yes, it is predefined function, but user defined, like in the last example, the sum function, it is not predefined, now it is user defined. ये क्या बनेगा? User need to define a function for its requirement according to the requirement. So अच्छा, why the function are required, ठीक है, फंक्शन का आइडिया क्यों आया, why the function is required, है ना, क्यों यूज करते हैं बेसिकली. So first of all, function is something that is providing modularity into your program. ठीक है, यदि आप क्या करते हो, मॉड्यूलरिटी की बात कर लेते हैं. So first of all, like if we are writing each and every statement as a single program, ठीक है, आप एक सिंगल प्रोग्राम लिखते जाइए. आपने मैन से स्टार्ट किया है, मैन फंक्शन से. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सम, आपने पहले सम के लिए कोडिंग लिखा, देन आपने डिफरेंस के लिए कोडिंग लिखा, देन यू आर राइटिंग द कोड फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, एंड देन मॉड्यूलर एंड सो ऑन. ठीक है, सो देयर इज नो सेपरेशन. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर राइटिंग इन सीक्वेंस. Now suppose, ठीक है, I just want to do the sum only, but still the other function will get execute. दूसरे कोड आपके यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे. So in this case, what I will do, I will create a separate function for the sum. So if I want to calculate sum, I will call the sum function. मैं सिर्फ sum को कॉल करूंगी. So this is what the benefit of modularization. Second thing, कि यदि मान लीजिए एरर इस केस में आता है तो 100,000 लाइन ऑफ देयर, ठीक है, 1000 लाइन्स ऑफ देयर, दैट दीज आर इन अ सीक्वेंस. सो इट विल बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द एरर, है ना. यदि आप सिर्फ सीक्वेंशियल कोड लिख रहे हो, मॉड्यूलराइज्ड कोड नहीं लिख रहे हो, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द एरर. So it is the better option to modularize your program. अपने प्रोग्राम को मॉड्यूलराइज कर दीजिए. Now if there is any error in the sum function, तो आपको सिर्फ sum करेक्ट करना होगा. If there is any error into the difference function, आपको सिर्फ डिफरेंस करेक्ट करना होगा. If there is any error in multiplication, so आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना होगा, डिबग करना होगा, है ना. So like now what are the benefit? So repeated statement can be grouped into a function. Second, splitting the program into function make the program more readable, maintainable and increase the modularity. Any doubt till now? स्पीड ठीक है, समझ में आ रहा है, ज्यादा तेज तो नहीं? प्लीज मस्ट वॉच द प्रैक्टिस सेशन. के प्रैक्टिस सेशन जरूर देख लें, आज से ही स्टार्ट किया है. Now whenever we will create a function, ठीक है, whenever we will create a function will have three parts, है ना. यहाँ पर भी इसके three parts होते हैं. First part is called the declaration of function, or it is also known as the prototyping. ठीक है, प्रोटोटाइपिंग मतलब आप अपने प्रोग्राम में यदि कोई फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो, है ना. सो बिफोर द मैन फंक्शन यू हैव टू स्पेसिफाई that I will use a function, the name of function will be sum, and यदि पैरामीटर आप देते हो तो वो भी स्पेसिफाई करिए कि दिस विल बी द पैरामीटर, एंड यहाँ आपको लगाना है सेमीकोलन. सो इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन, है ना. आप पहले से कंपाइलर को बता रहे हो कि दिस विल बी अ फंक्शन इनटू माय प्रोग्राम. इट में भी आप डेफिनेशन कहीं और दो, आप डेफिनेशन बाद में दे सकते हैं, बट डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइपिंग इज रिक्वायर्ड. ठीक है, प्रोटोटाइपिंग की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, प्रोटोटाइपिंग इज रिक्वायर्ड.
to tell the compiler that this is what this kind of function will be there. इसकी definition आपको आगे मिलेगी. Second thing is definition. ठीक है, so like I can give the definition. Now in definition there will be the header. Header will have the same prototype structure. Integer sum, integer a, comma integer b, and then within the curly bracket आपको जो डेफिनेशन देनी है वो विद इन द कर्ली ब्रैकेट होती है. यहाँ सेमीकोलन लगाया मतलब ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन है, ये प्रोटोटाइप है, दैट इज टेलिंग द कंपाइलर दैट देयर विल बी अ फंक्शन नेम्ड सम. वहां एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका नाम क्या होगा, सम होगा, और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा एंड इट विल हैव 2 पैरामीटर. नाउ फर्दर कहीं जाके हमको एक सम फंक्शन डिक्लेयर करना है. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट नोन एज द डेफिनेशन. इसको आप क्या बोलने लगोगे, डेफिनेशन. यू विल स्पेसिफाई द वर्किंग, आप यहाँ वर्किंग लिखोगे. एंड देन फाइनली यू हैव फंक्शन कॉल. whenever I want to use this function, ठीक है, यदि मुझे यूज करना है, in that case function call is required. ठीक है, उस केस में आपको क्या लगेगा, फंक्शन कॉल. ठीक है, तो ये आपके 3 पार्ट्स होते हैं. इज एनी डाउट? ठीक है, चलिए हम वर्किंग भी देख लें, है ना, हम वर्किंग भी देख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है. ठीक है, here is the code for the C function. तो सबसे पहले आपने जो दिया है, ठीक है, now you can say before the man function. यदि मैं man function की, it is outside the man function, we are providing, first we will provide the prototype. ये आपका क्या हो जाएगा, prototype. So in prototype, ठीक है, prototype, what we are writing, integer add int a int b. ठीक है, then again we are writing the same line, but now this time we are using curly bracket to provide the definition. So जो भी a और b का वैल्यू रिसीव होगा, ठीक है, उस वैल्यू को सम करके हम रिटर्न कर देंगे. So this is what function definition. ये आपका क्या बन रहा है, फंक्शन डेफिनेशन. फाइनली देखिए मैन फंक्शन में आपने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट. एड फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, एंड 2 and 3 इट इज द actual argument that you are passing, 2 and 3. So 2 will be copied into A, 2 किसमें कॉपी होगा, A में, and 3 will be copied to B. It is call by value. ये call by value है, इसलिए ये कॉपी होगा. And then the result will be calculated. Return statement will return the result 2 plus 3 5, and result will be get printed again into the man function. तो result की वैल्यू क्या बनी, 5, and again ठीक है आपका रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, दैट इज 5. तो देखिए वर्किंग कैसे हुआ. हमेशा एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, या आपको ट्रेसिंग कहां से स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट द ट्रेसिंग फ्रॉम मैन फंक्शन. मैन फंक्शन में आप क्या कर रहे हो, यू आर राइटिंग अ वेरिएबल रिजल्ट एंड फंक्शन कॉल कर रहे हो, दैट इज एड, और वैल्यू क्या पास कर रहे हो, 2 3. एज सुन एज यू विल गेट 2 3 फंक्शन कॉल, जंप टू द फंक्शन डेफिनेशन. किस पर जंप कर जाइए, फंक्शन डेफिनेशन पर. नाउ हियर यू कैन सी देयर इज अ रिटर्न टाइप इंटीजर, मतलब ये रिजल्ट रिटर्न करने वाला है, और रिजल्ट का टाइप क्या होगा, इंटीजर. नाउ ए विल गेट 2 बिकॉज फर्स्ट पैरामीटर दैट यू आर पासिंग वो ए है, तो ये आपको यहाँ क्या मिलेगा, 2, एंड द वैल्यू ऑफ बी इट विल बी 3. इसी सीक्वेंस में रिसीव करेगा जिस सीक्वेंस में आपने पास किया है. इफ यू वांट यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ठीक है, आपको लगता है तो आप चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, व्हाट वैल्यू हैज बीन रिसीव्ड फॉर ए, है ना, एंड व्हाट वैल्यू हैज बीन रिसीव्ड फॉर बी. ठीक है, बी के लिए क्या वैल्यू रिसीव हुई और ए के लिए क्या वैल्यू रिसीव हुई. सो वॉट एवर इज द ऑर्डर जो आप यहाँ पर लिख रहे हो, उसी ऑर्डर में वैल्यू पास होती है. सो दिस इज ए कॉमा बी.
ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। नाउ फाइनली रिजल्ट रिटर्न हो रहा है एंड वी आर रिटर्न स्टेटमेंट विल टेक द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड इट विल रिटर्न, देखिए नाउ दिस इज व्हाट विल बिकम, a कहलाएगा r वैल्यू एंड रिजल्ट इज l वैल्यू, रिजल्ट आपका क्या होगा l वैल्यू, सो इट विल स्टोर द वैल्यू इनटू रिजल्ट। फाइनली अगेन आपने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा वर्किंग है। तो यदि मैं देखूं तो ए का वैल्यू है आपको 2 एंड बी वैल्यू इज 3। यदि आप यहाँ पर 4 एंड 3 लिख दें, 4 एंड 5 कर दो तो अभी चेंज हो जाएगा, है ना। नाउ ए वैल्यू इज 4, बी वैल्यू इज 6, सेम ऑर्डर में आपकी वैल्यू पास होती है। आप यहाँ 6 कर दो, यहाँ 4 कर दो, सो नाउ ए विल बिकम 6, बी विल बिकम 4। ठीक है भाई, इतना क्लियर है फंक्शन का। फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है एंड फंक्शन डेफिनिशन क्या है। व्हाट इज फंक्शन कॉल, व्हाट इज फंक्शन कॉल, व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप एंड व्हाट इज फंक्शन डेफिनिशन। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन डेफिनिशन एंड व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप। देखिए, इवन दो आई हैवंट मेंशन द प्रोटोटाइप, इवन दो, ठीक है, इस केस में मैंने प्रोटोटाइप मेंशन नहीं किया है, बट आई एम स्टिल गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, स्टिल गेटिंग द रिजल्ट, because what happen in C, if you are giving the definition of the function before man program, यदि man function के पहले आप ये function की definition दे रहे हो, there is no need for the prototype, प्रोटोटाइप की कोई भी नीड नहीं है। लेकिन यदि यही डेफिनेशन, ठीक है, सॉरी, यदि यही डेफिनेशन, क्या हो रहा है भाई ये, ओके सॉरी, ठीक है, यदि यही डेफिनेशन आपने किसके बाद दे दी, यदि यही डेफिनेशन आपने दी आफ्टर दी, हाँ, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। नाउ आई एम ट्राइंग टू गिव द डेफिनेशन आफ्टर द मैन फंक्शन, देखते हैं वर्क करेगा कि नहीं, मॉडर्न कंपाइलर का वर्किंग चेंज हुआ है या नहीं। सो हियर वी हैव, इट इज स्टिल वर्किंग, ठीक है। लेकिन जो ओल्ड कंपाइलर थे वो ये कहते हैं कि यदि आप मैन फंक्शन के बाद में डेफिनेशन दे रहे हो, सो वी हैव टू स्पेसिफाई द प्रोटोटाइप, हमको प्रोटोटाइप देना पड़ेगा, ठीक है, हमको प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। सो आप तो सिर्फ सीक्वेंस याद रखिएगा, प्रोटोटाइप इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट वी विल प्रोवाइड द प्रोटोटाइप, देन वी शुड हैव द फंक्शन डेफिनेशन एंड देन वी शुड हैव फंक्शन कॉल, ये आपका फंक्शन कॉल है, ठीक है, ये आपका क्या है, फंक्शन कॉल है, ठीक है। चलिए, आज का प्रैक्टिस सेशन सबको देखना है, हाँ, तो ये आपका क्या बनेगा, फंक्शन कॉल। Okay, now if we will talk about the function type, already we have discussed the function type, so we have predefined function या built-in function और we have user defined function, but basis on the, ठीक है, but basis on the two things, देखिए आप कैसे लिखते हो फंक्शन की डेफिनेशन, आपका होता है रिटर्न टाइप, ठीक है, आप क्या लिखते हो, रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नेम लिखते हो आप, फंक्शन नेम, and then you have parameter list, है ना, parameter list। okay, so now basis on return type and parameter list we can categorize function into the 4 category, 4 type से आप divide कर सकते हो। like first case we have no return type without parameter, मतलब simply आपका एक function है, function का return type void है, it will not return any value and it will do not have any parameter, ठीक है, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड फंक्शन, ठीक है, फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर, ये फर्स्ट कैटेगरी बना। सेकंड कैटेगरी आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन विद रिटर्न टाइप, ठीक है, फंक्शन विद रिटर्न टाइप बट विद नो पैरामीटर, ठीक है, फंक्शन विद रिटर्न टाइप बट विद नो पैरामीटर। सो इन दिस केस नाउ यू कैन सी कि अब आपका कोई भी
रिटर्न टाइप तो है बट पैरामीटर नहीं है. यू कैन यूज द फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. एंड द थर्ड केस इज दैट, ठीक है, फंक्शन विथ पैरामीटर बट नो रिटर्न टाइप. तो थर्ड केस में आपका क्या बन रहा है, void sum and parameter list is there. ठीक है, पैरामीटर लिस्ट इज देयर. एंड फाइनली, ठीक है, फाइनली द फंक्शन विथ पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप. तो अभी जो आपने एग्जांपल देखा, ठीक है, अभी आपने जो एग्जांपल देखा वो किसका था, दैट इज ऑफ रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर. ठीक है, दैट इज ऑफ टाइप रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर. ठीक है, हाँ देखो, यहाँ एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, ठीक है, इट इज अबाउट द सी कंपाइलर. तो आप क्या कर रहे हो, हेयर यू हैव अ प्रोग्राम. नाउ यू कैन सी दिस इज द प्रोग्राम विद नो रिटर्न टाइप, क्योंकि रिटर्न टाइप आप क्या दे रहे हो, void. एंड देयर इज नो पैरामीटर लिस्ट, कोई भी पैरामीटर लिस्ट नहीं है. हेयर यू हैव मैन फंक्शन चेक द प्राइम नंबर. आप फंक्शन क्या लिखने वाले हो, चेक प्राइम नंबर. बट अभी आप फंक्शन को कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो, दिस इज अ फंक्शन कॉल. ये आपका सीधे सीधे क्या बन रहा है, फंक्शन कॉल. सिंस इट डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, इसलिए हमको इसको कॉल करने के लिए इक्वल टू साइन की जरूरत नहीं पड़ी. जस्ट लाइक इन द लास्ट एग्जाम आपने लिखा था रिजल्ट इक्वल टू. अब रिजल्ट इक्वल टू क्यों लिखना पड़ रहा था, बिकॉज देयर वॉज अ रिटर्न टाइप इंटीजर, है ना. बट इन दिस केस हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. सो वी आर जस्ट कॉलिंग द फंक्शन. ठीक है, आप अपने फ्रेंड से सिर्फ हेलो बोल रहे हो, आप सिर्फ हेलो बोल रहे हो. एंड जैसे ही आपने हेलो बोला इट विल स्टार्ट दिस टास्क. आपने अपने स्टूडेंट को एक टास्क दिया एंड दे आर डूइंग देयर टास्क बट दे विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वो आपको नोटबुक सबमिट नहीं करेंगे. सो नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर. नाउ अब देखिए वर्किंग क्या हो रहा है, void चेकिंग चेक प्राइम नंबर फंक्शन कॉल होगा. रिटर्न टाइप void है, मतलब ये रिटर्न नहीं करेगा कोई भी वैल्यू. वी हैव वेरिएबल एंड आई फ्लैग, इट इज कॉल्ड दी लोकल वेरिएबल. ठीक है, इनको आप क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल. व्हाई, बिकॉज इट इज इन द स्कोप ऑफ चेक प्राइम नंबर. ये किसके लोकल वेरिएबल है, ये चेक प्राइम नंबर के लोकल वेरिएबल है. यू कैन नॉट यूज देम आउटसाइड द चेक प्राइम नंबर. ठीक है, तो आपने एक मैसेज दिया, प्लीज एंटर द पॉजिटिव इंटीजर, रीड की वैल्यू. इफ द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0 एंड 1 है, आपने सेट किया फ्लैग 1, मतलब ए प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. बट इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 टू n बाय 2, ठीक है, अपने प्रीवियस नंबर से भी यदि ये डिवाइड होता है n बाय 2 तक, तब तक आपने डिवीजन किया. एंड इफ इट इज डिविजिबल, ठीक है, देन अगेन आपने फ्लैग सेट कर दिया 1. if the remainder is 0 then flag set होगा 0 because number is divisible by particular value of I. and यदि ये नंबर डिवाइड नहीं होता तो फ्लैग क्या रहेगा, फ्लैग रहेगा 0. आपने इनिशियलाइज किया था 0 से. सो नाउ यू कैन सी कि प्रिंट एफ परसेंट डी, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. यदि फ्लैग की वैल्यू 1 है तो प्राइम नंबर नहीं है, और यदि फ्लैग की वैल्यू 0 है इट इज अ प्राइम नंबर. तो समझ गए कि कैसे यहाँ पर फंक्शन इज वर्किंग विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर. सिर्फ हम फंक्शन को कॉल करते हैं एंड रेस्ट वर्किंग इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन. सारी वर्किंग आपकी कहाँ रहेगी, इनसाइड द फंक्शन, है ना, इनसाइड द फंक्शन. रन करके देख लीजिए. सो एंटर अ पॉजिटिव नंबर. आप मुझे बताइएगा वेदर इट इज प्राइम और नॉट. 23, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, अप टू वी विल डिवाइड द नंबर 23 बाय 11. 11 तक आपको डिवाइड करके देखना है. इफ इट इज डिविजिबल देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर.
If it is not divisible, then it will be a prime number. क्या है ये प्राइम नंबर नहीं है? यस, इट इज अ प्राइम नंबर ना. एंटर करें, देखिए 23 इज अ प्राइम नंबर. अगेन आप रन करके देख लो. इफ यू हैव अ नंबर 14, देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, इट इज नॉट अ 14, so it is not a prime number because it is divisible by 2. ठीक है, वेरी गुड. वर्किंग समझ में आई आपको फंक्शन मैन? तो मेरा ये कंसर्न है कि आपको ये चीज समझ में आना चाहिए. व्हाट इज द फंक्शन with no return type and no parameter list? with no return type and no parameter list. ठीक है, पहली चीज तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. है ना. अब देखिए दूसरा टाइप, व्हाट इज द अनदर टाइप ऑफ फंक्शन. ठीक है, व्हाट इज द अनदर टाइप ऑफ फंक्शन? So another type is called the function with return type but without parameter. ठीक है, यहाँ जो function होगा it will have return type but without parameter. ठीक है, but without parameter. Function have return type but parameter. ठीक है, तो अब वर्किंग कहाँ चेंज हो रही है? चलिए अगेन हम देख लेते हैं. नाउ अगेन वी हैव इंटीजर. दिस इज अ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन. ठीक है, तो देखिए यहाँ इंटीजर आप लिख रहे हो, सो दिस इज व्हाट रिटर्न टाइप. फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन नेम विल बी देयर बट देयर इज नो पैरामीटर. सो जो आपकी ब्रैकेट है इट इज एम्प्टी. ये ब्रैकेट एम्प्टी है, मतलब आपको कोई वैल्यू पास नहीं करना. सो इन इंटीजर मैन फंक्शन वी हैव अगेन एन आई एन फ्लैग. वी विल हैव फंक्शन कॉल गेट इंटीजर. जैसे ही मैंने इंटीजर को कॉल किया, ठीक है, वर्किंग कहाँ चली गई? यहाँ. नाउ इट इज राइटिंग एंटर अ पॉजिटिव नंबर. स्कैन एफ करेगा नंबर को और रिटर्न कर देगा टू दी मैन फंक्शन. है ना, ये आपका रिटर्न हो गया. तो इट इज व्हाट फंक्शन विद रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर. सिर्फ ये आपको एक रिजल्ट रिटर्न कर रहा है. नाउ एन को अब आप क्या कर सकते हो? वापस चलते हैं मैन प्रोग्राम में. तो इन मैन हमने जब फंक्शन कॉल किया था विद रिटर्न टाइप, देयर शुड बी सम एल वैल्यू. यदि आप ऐसे नहीं करेंगे ना तो देखिए यहाँ एरर आ जाएगा. यहाँ एरर आ जाएगा. एक सेकेंड, इसको फिर से करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं. नाउ वी शुड हैव अ एरर. ठीक है, सो इट शुड गिव द एरर द एल वैल्यू रिक्वायर्ड. ठीक है, यहाँ एरर क्या आना चाहिए आपका? एल वैल्यू रिक्वायर्ड. मे बी ये जो ऑनलाइन कंपाइलर है इट इज वर्किंग प्रॉपरली. ये पुराने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन यहाँ बना लेता होगा जब हम रन करते हैं, है ना. तो वी so now we have if n is equal to 0 या n is equal to 1, फ्लैग सेट किया 1. ठीक है, देन अगेन वी आर डूइंग डिवीजन एंड यदि फ्लैग की वैल्यू 1 है ना, इट विल प्रिंट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड अदरवाइज इट विल प्रिंट इट इज अ प्राइम नंबर. तो नाउ यू कैन सी कि आपने फंक्शन के अंदर क्या किया. फंक्शन के अंदर कुछ नहीं किया, जो वैल्यू आ रही थी उसको आप रिटर्न कर रहे हो. सो देयर इज अ रिटर्न टाइप. आई कैन ऑल्सो राइट दिस डेफिनेशन. ठीक है, मैं ये पूरी डेफिनेशन लेकर ये वाला, ठीक है, ये मैं पूरा डेफिनेशन लेकर मैं चाहूं, ठीक है, मैं चाहूं तो एक काम करते हैं, यहाँ हम चाहें तो ये वर्किंग हम यहाँ पर भी दे सकते हैं. हम चाहें तो फंक्शन के अंदर भी ये वर्किंग दे सकते हैं कि आपने फंक्शन एन को रिटर्न किया. ठीक है, एन को रीड किया. अब एन को आप चेक करिए और फ्लैग को सेट करिए.
फ्लैग को सेट करिए और रिटर्न क्या कर दीजिए, फ्लैग, रिटर्न क्या कर दीजिए, फ्लैग। ठीक है, तो आपको यहाँ एक वेरिएबल फ्लैग डिक्लेयर करना पड़ेगा बस। तो यस, वी कैन डू वर्किंग एज वेल, बट वी शुड हैव टू रिटर्न सम वैल्यू। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कुछ रिजल्ट रिटर्न करना होगा बस। तो ये आपकी वर्किंग हो जाएगी। ओके भाई, समझ में आया ये? integer I is also required here. Function with return type but with no parameter. So now this is 34, enter किया, it is not a prime number, है ना, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। It is not a prime number और it is a prime number। ये आपका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मैसेज आ जाएगा, लाइक वी हैव 51, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है ना, समझ गए? तो ये जो प्रोग्राम था, जो सेकंड ये प्रोग्राम था, ये क्या था, फंक्शन विद रिटर्न टाइप बट विद नो पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर नहीं है। क्लियर है भाई? वर्किंग इंटीजर के अंदर आप चेक कर रहे हो कि वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट, वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट, है ना। दिस इज द सेकेंड कैटेगरी, ये आपकी सेकेंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी भाई एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, क्लियर है? थर्ड कैटेगरी यहाँ पर क्या बनती है, थर्ड कैटेगरी जो आपकी बनती है, इट इज फंक्शन विद पैरामीटर बट नो रिटर्न टाइप, फंक्शन विद पैरामीटर बट, मैं ये चारों फंक्शन कोड आपको दे दूंगी। ठीक है, मैं आपको चारों कोड दे दूंगी, तो आप इतना टेंशन मत लेना, आप फिर से देख सकते हो। ठीक है, कोडिंग समझने के लिए। सो नाउ वी हैव द थर्ड कैटेगरी, वो क्या है, फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विद पैरामीटर बट नो रिटर्न टाइप। सो नाउ देखिए, रिटर्न टाइप आपने क्या लिखा, void. Now you are writing return type is void, but there is a parameter n, है ना, यहाँ एक पैरामीटर है। मैन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, एंटर अ पॉजिटिव नंबर, और जो वैल्यू आप रिसीव कर रहे हो वो आप पास कर दे रहे हो फंक्शन में, क्योंकि देयर इज अ फंक्शन विद रिटर्न विद पैरामीटर बट रिटर्न टाइप इज नॉट देयर, तो रिजल्ट रिसीव करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ दिस इज द वर्किंग, आई फ्लैग इफ n is equal to 0 and not equal to 1। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, 0 and 1 is not a prime number, and if it is divisible by 2 or any number up to n by 2, it is not a prime number। so बस ये आपका क्या होगा, it will not return anything, return statement missing है। क्यों मिसिंग है, because this is a function with no return type but with a parameter। yes or no? so again हमने जैसे ही पॉजिटिव इंटीजर डाला, ठीक है, इट विल गिव, इट इज अ प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर है। बट हमको तो कॉन्सेप्ट ये समझना है कि व्हाट इज फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। हाँ जी, रिपीट करना है तो बता दीजिए, मैं दूसरे तरीके से भी रिपीट कर दूंगी, बट रिस्पॉन्स चाहिए मुझे यहाँ पर। ओके, एंड द लास्ट कैटेगरी इज फंक्शन विद रिटर्न टाइप एज वेल एज पैरामीटर, function with return type as well as parameter, function with return type as well as parameter, this is the fourth category, है ना, function with argument and a return type, function with argument and a return type। ठीक है, जो लोग प्रोग्रामिंग देख रहे हैं भाई, आप लोग से एक बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस सेशन जरूर देखें और यहाँ मुझे बता दें अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। Now finally categories, function have return type as well as parameter, function में return type भी है and parameter भी है। So I have integer and flag, positive integer आपने वैल्यू को रीड किया, एंड सिंस इट इज अ फंक्शन विद पैरामीटर, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, सिंस दिस इज अ फंक्शन विद अ पैरामीटर, तो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे यू शुड राइट द पैरामीटर, आप पैरामीटर भी लिखें
और सिंस द फंक्शन हैव रिटर्न टाइप सो वी शुड हैव सम एल वैल्यू, ठीक है, आपको यहाँ पर एल वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी। तो यदि आप इस प्रोग्राम को रन करो, ठीक है, तो इट शुड गिव यू द एरर दैट एल वैल्यू इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बट पता नहीं ये क्यों महान है सो ये आपको एरर नहीं देता। 78 इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फ्लैग, नाउ इट विल रिटर्न अ वैल्यू वेदर फ्लैग इज 1 और 0, ठीक है। तो बेसिस ऑन द वैल्यू आप आगे कंपैरिजन करोगे। तो दिस इज व्हाट, ये आपका हो जाएगा फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर, फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। तो ये 4 कैटेगरी है, ठीक है, ये आपकी 4 कैटेगरी है। फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, फंक्शन विद रिटर्न टाइप बट विद पैरामीटर, फंक्शन विद विदाउट रिटर्न टाइप बट पैरामीटर एंड फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर, ठीक है। ओके, ये आपकी 4 कैटेगरी हो जाएगी किसकी, फंक्शन की। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ देख लेते हैं, ठीक है, कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन शुड अपीयर। एक काम करिए, इसको गो थ्रू करिए, इस स्लाइड में जो भी डाउट है मुझे बताइएगा। ओके, द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ फंक्शन डिक्लेरेशन appear outside all the function, ठीक है, जो डिक्लेरेशन है we cannot write the declaration inside the function। हम किसी भी फंक्शन, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम जो भी डिक्लेरेशन कर रहे हैं, लाइक दिस इज अ डिक्लेरेशन, सेमीकोलन से एंड हो रहा है, आई कैन नॉट कीप इट विद इन दी अनदर फंक्शन, ठीक है, मैं इसको अंदर नहीं रख सकती हूँ। it is basically not allowed according to the Danish Ritchie, so it should be outside the all function। and if we are sorry, function definition, all the function know about each other and can call each other। फंक्शन कैन ऑल्सो डिक्लेयर विद इन अदर फंक्शन, हाँ डिक्लेरेशन कर सकते हो आप, ठीक है, लाइक दिस इज ओके डिक्लेरेशन, बट फंक्शन डेफिनेशन शुड नॉट बी अनदर फंक्शन। तो यदि मैं कोशिश करूं कि जो डेफिनेशन है, ठीक है, कौन सी डेफिनेशन है आपकी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेक प्राइम नंबर, ठीक है, ये आपकी चेक प्राइम नंबर है, और इसको हम कोशिश करें कि हम इसको लेकर किस में डाल दें, हम कोशिश करें कि हम इसको लेकर डाल दें मैन फंक्शन के अंदर, ठीक है, मैन फंक्शन के अंदर। सो इट इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं होता, ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन कैन नॉट बी इनसाइड द अनदर फंक्शन, ये अनदर फंक्शन के इनसाइड नहीं हो सकता। इट कैन बी, डिक्लेरेशन कैन बी इनसाइड द फंक्शन, और इसको आप बोलते हो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। So function can also be declared within the function। In this case the function within only declaration can be know about it। आप outside the function call नहीं कर पाओगे यदि आपने nesting perform की है तो। Second, function declaration also called the prototype since they provide the model or the blueprint of the function, ठीक है, प्रोटोटाइप को आप क्या बोलते हो, डिक्लेरेशन को हम प्रोटोटाइप कहते हैं बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ मॉडल, या ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। कैसे ब्लूप्रिंट, बिकॉज आप क्या लिख रहे हो, आप बता रहे हो ना कि आपके फंक्शन में फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन का नेम क्या होगा, फंक्शन में कितने पैरामीटर होंगे, ऑल दीज थिंग वी आर स्पेसिफाइंग हियर।
है ना, हमें तीनों चीजें यहाँ स्पेसिफाई करते हैं, बट हम वर्किंग नहीं देते। तो हमने क्या बोला, ये ब्लूप्रिंट है, इट विल स्पेसिफाई ऑल द थिंग कि रिटर्न टाइप क्या है, पैरामीटर क्या है। सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप और अ मॉडल और अ ब्लूप्रिंट। नो नीड टू डिक्लेयर अ फंक्शन इफ इट इज डिफाइंड बिफोर ऑल फंक्शन। यदि आप पहले डेफिनेशन दे रहे हो बिफोर मैन फंक्शन और बिफोर एनी अदर फंक्शन, तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है। द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड द फंक्शन डिक्लेरेटर। देखिए, यदि मैं आपको यहाँ पर फंक्शन शो करूं, तो आपने क्या किया था, ये देखिए डेफिनेशन थी फंक्शन की, ये फंक्शन की आपकी डेफिनेशन थी, इंटीजर चेक प्राइम नंबर इंटीजर एन। ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा आपने यहाँ पर प्रोटोटाइप दिया है। ठीक है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोटोटाइप, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोटोटाइप। और अब यहाँ आपने इसको सेमीकोलन लगाया, तो आप बोल रहे हो इट इज प्रोटोटाइप, एंड इन द फंक्शन द सेम थिंग इज कॉल्ड द फंक्शन डिक्लेरेटर। यहाँ आप इसको क्या बोलोगे, फंक्शन डिक्लेरेटर। ठीक है, इसको आप बोलने लगोगे डिक्लेरेटर। नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज सिमिलर, इंट भी सेम है, फंक्शन नेम भी सेम है, पैरामीटर भी सेम है, बट नाउ आई एम राइटिंग कर्ली ब्रैकेट हियर। देखिए, ये चीज बदल सकती है, यहाँ आप एन दे सकते हो, वहां आप ए दे सकते हो, ये चीज बदल सकती है, पैरामीटर का नाम चेंज हो सकता है, बट रिमेनिंग विल रिमेन एज इट इज। सो इसको आपने क्या बोल दिया, इस लाइन को आपने बोल दिया डिक्लेरेटर। ठीक है, ये क्या बन गया, डिक्लेरेटर। सो function, the first line of function definition is called the declarator, and it is similar to the function declaration followed by the function body। आपने जो डिक्लेरेशन दिया था, जो प्रोटोटाइप दिया था, बिल्कुल वही है, बट नाउ इट हैव द फंक्शन बॉडी एज वेल। अब इसमें फंक्शन बॉडी भी होगी। नाउ नो फंक्शन डेफिनेशन इज अलाउड विद इन द फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन में इंक्लूड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल और डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। function definition may contain any number of function call। ठीक है, we could have any number of function call to other function or itself। any doubt, any point that I need to repeat? Akshita ma'am, Sonia ma'am, Mohit sir, Shreya ma'am, any point that I need to repeat? ठीक है ना, हाँ, तो ये थोड़ा थ्योरी कॉन्सेप्ट है, बाकी वी विल डू प्रैक्टिस, तो उसमें बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आज से प्रैक्टिस सेशन देखना शुरू कर दीजिए सी प्रोग्रामिंग का। नाउ द इम्पोर्टेंट डिस्कशन, ठीक है, important discussion is about the function parameter। function parameter, now we have two type of function parameter, first is called formal, second is called actual। first is called formal, second is called the actual। formal is also known as the dummy parameter or simply the placeholder। ठीक है, it is called the formal parameter, dummy parameter or simply the placeholder। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं एक बहुत सिंपल प्रोग्राम आपको लिखकर बताती हूँ। ठीक है, मैन फंक्शन विल बी देयर, तो इसको तो हम यहाँ एक तरफ रख देते हैं। नाउ सपोज आई एम गोइंग टू राइट अ फंक्शन सम। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट अ फंक्शन सम, सो आई एम गोइंग टू डिक्लेयर इट हियर। ठीक है, इंटीजर sum is the name of function, sum is the name of function। now I am saying there will be three parameter, int, ठीक है, comma integer, comma integer, है ना, comma integer, and semicolon will be there। you can give float, you can give double, you can give character according to the need, you can give the array, you can give a structure, whatever is the need of your program, वो कोई भी parameter हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप क्या बोलते हो, इनको आप बोल रहे हो दिस इज व्हाट, फंक्शन प्रोटोटाइप। ये आपका क्या है, इट इज योर फंक्शन प्रोटोटाइप, है ना, ये तो सिंपली फंक्शन प्रोटोटाइप है। हम बता रहे हैं कि आगे प्रोग्राम में हम कहीं इस टाइप का फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो ये तो आपका बना फंक्शन प्रोटोटाइप।
Now there is no need to give the name of parameter, है ना, हमको ये पैरामीटर का नाम देने की जरूरत नहीं है. It will not give any error message. Okay, so हाँ, तो इनको आप क्या आपने ये फंक्शन दे दिया, ठीक है. सपोज आई एम ऑल्सो गिविंग द डेफिनेशन इंट सम, ठीक है. इनसाइड दिस आई एम गिविंग अ पैरामीटर इंटीजर x, इंटीजर y एंड देन आई है इंटीजर z, ठीक है. ये 3 पैरामीटर है दैट आई विल रिसीव, ठीक है. एंड देन व्हाट आई विल डू, x इक्वल टू y प्लस z एंड सिंस इट हैव अ रिटर्न टाइप, फंक्शन में रिटर्न टाइप है, तो जो रिजल्ट है उसको मैं रिटर्न कर देती हूँ, रिटर्न, ठीक है. रिटर्न क्या कर दीजिए, x, है ना. तो ये फंक्शन हो गया विद पैरामीटर लिस्ट एंड रिटर्न टाइप. बट सी x y z इट इज व्हाट, ये आपके क्या बनेंगे, ये आपके बनेंगे फॉर्मल पैरामीटर. इनको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल पैरामीटर. वी विल कॉल देम डमी पैरामीटर, वी विल कॉल देम placeholder, because here we do not have actual value, यहाँ हमारे पास वैल्यू नहीं है. but when we will call the function, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे then only it will get the value and then only it will perform the execution. so ये क्या है, ये तो सिंपली प्लेस होल्डर है, ये आपके सिंपली प्लेस होल्डर है, ये आपके डमी पैरामीटर है, ये आपके फॉर्मल पैरामीटर है. नाउ सी इनसाइड द मैन फंक्शन आई एम राइटिंग, ठीक है, इंटीजर and let's take p q and r and sum भी ले लेते हैं, that will have a result sum, ठीक है. now क्या करते हैं, printf, है ना. अब ये आपके क्या बनेंगे, एक्चुअल पैरामीटर, बिकॉज इट विल हैव एंटर 3 वैल्यूज लिख देती हूं मैं, ठीक है. एंटर 3 वैल्यूज, ये आपका प्रिंट एप मैसेज हो जाएगा. देन आई विल राइट स्कैन एप फंक्शन फॉर 3 डिफरेंट वैल्यू. सो ऑल थ्री आर, ठीक है, इंटीजर. सो %d कॉमा p कॉमा q कॉमा r हम रिसीव कर लेते हैं. वी शुड राइट एम्परसेंड बिफोर दिस, ठीक है. एम्परसेंड लिखिएगा, एम्परसेंड एंड एम्परसेंड. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p q r एंड c, ठीक है. now print f, okay, now we will call the function, ठीक है. अब आप क्या करो, sum equal to, now let's call the function, ठीक है. now let's call the function sum and sum में आप क्या पास कर रहे हो, pqr. so this pqr it will have the actual value, so it is called the actual parameter. इनको हम actual parameter बोलते हैं, ठीक है. ये आपका क्या बनेगा, इट इज योर एक्चुअल पैरामीटर. इट विल हैव सम रिजल्ट, स्टोर कर रहे हैं हम सम में, तो सम ऑफ नंबर प्रिंट कर देंगे, ठीक है. सम ऑफ नंबर, सो इट हैव रिटर्न टाइप एज वेल. अगेन इट विल बी इंटीजर वैल्यू, सो %d कॉमा सम, ठीक है. तो देखिए समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल पैरामीटर एंड द एक्चुअल पैरामीटर. फॉर्मल पैरामीटर इनको हम बोलते हैं सिंपली द डमी पैरामीटर और द प्लेस होल्डर. सो फंक्शन पैरामीटर दैट आर प्रोग्राम गिवन इन द डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, ये आपके पैरामीटर है. बट द एक्चुअल पैरामीटर दैट इज ऑफन नोन एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है. एक्चुअल पैरामीटर इज ऑल्सो नोन एज आर्ग्यूमेंट. इट इज स्पेसिफाइड इन फंक्शन कॉल, ठीक है. इसको आप फंक्शन कॉल में स्पेसिफाई कर रहे हो. So here you can see now आपको पता चल गया कि in this example x y z क्या है, आप बताएंगे. हाँ, x y z क्या है, it do not have any value. x में कोई वैल्यू नहीं है, y में कोई वैल्यू नहीं है, z में कोई वैल्यू नहीं है. But when we will run the program, ठीक है, तो जो वैल्यू p में आएगी it is going to copy into x. Then q का वैल्यू, p का वैल्यू कॉपी होगा x में, q value will get copied into y and r value will get copied into z. So in the parameter, Sonia ma'am, the parameter that we are passing into the function call के टाइम आप जो पैरामीटर देते हो that is called the actual parameter.
ठीक है, द एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट दैट वी स्पेसिफाइड इन फंक्शन कॉल, तो उनको आप क्या बोलते हो, एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो पहले तो यहाँ आपको मैसेज आया एंटर द 3 वैल्यू, एंटर 12 13 एंड सपोज 45। सो ये 3 वैल्यू आपको मिली 12 13 45 एंड सम इज 58, सम इज 58। सो पहले वैल्यू कहाँ गई होगी, पहले वैल्यू जाएगी पी क्यू आर में, है ना, पहले वैल्यू कहाँ जाएगी, पहले वैल्यू जाएगी पी क्यू आर में। गॉट इट, समझ में आया? हाँ जी भाई बताइए, पहले आपको ये वैल्यू कहाँ मिलेगी? So here we have, first we will receive the value in PQR. So it will equal, it is your actual parameter. In function call we have actual parameter and this is what your formal parameter. ये आपके क्या है, formal parameter है। ठीक है, ये आपके क्या है, formal parameter है ना। तो function call में जो parameter use हो रहे हैं वो actual है, और फंक्शन डेफिनेशन में जो पैरामीटर यूज हो रहे हैं दैट इज योर डमी पैरामीटर। सो नाउ यू कैन सी द वैल्यू, वैल्यू सही वही रहेगी, ठीक है, उसी सीक्वेंस में रहेगा। सो ये आप देख लीजिए रन करके। मैंने क्या मिस्टेक की, परसेंट डी लाइन नंबर 4 पर वी हैव प्रिंट एफ एक्स, अच्छा पी क्यू आर लिख दिया, एक्स वाई जेड शुड बी देयर, एक्स वाई एंड जेड, गुस्सा हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। हाँ, सो नाउ if we will enter 3 values, okay, we will enter 3 values. So now it is p is 12, q is 13 and r is 54, x is 12, y is 13 and z is 54 and sum will be 67। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअल पैरामीटर क्या है और फॉर्मल पैरामीटर क्या है, एक्चुअल क्या है और फॉर्मल क्या है। ठीक है, तो जो फंक्शन डेफिनेशन में जो पैरामीटर होते हैं दैट इज कॉल्ड दी फॉर्मल, डमी और प्लेस होल्डर, और जो आप फंक्शन कॉल में यूज करते हो वो होते हैं आपके एक्चुअल पैरामीटर, है ना। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है भाई, है ना, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन कॉल का। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका फंक्शन कॉल का। फंक्शन कॉल, ठीक है, फंक्शन कॉल होता है दो तरीके से, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, या पैरामीटर जो पासिंग होती है इट इज ऑफ टू टाइप, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। इट इज ऑफ टू टाइप, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। ठीक है, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। तो अभी जो हमारा एग्जांपल है ये क्या है, ये है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। ठीक है, ये अभी आपका क्या है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, सॉरी, पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू, एक्चुअली हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिए, ये क्या है, ये है पास बाय वैल्यू। ठीक है, इन पास बाय वैल्यू, इन पास बाय वैल्यू the value of actual parameter is going to be copied into formal parameter। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पर लिखा है, आपने लिखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर जो वैल्यू आप पास कर रहे हो वो जाके कहाँ कॉपी हो रही है, ठीक है, वो आपकी कॉपी हो रही है इन फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू, है ना, पी की वैल्यू कॉपी हुई एक्स में, क्यू का वैल्यू कॉपी होगा वाई में एंड आर का वैल्यू कॉपी होगा जेड में। सो ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हो तो वैल्यू गेट कॉपीड। ठीक है, वैल्यू गेट कॉपीड। तो जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर में। ठीक है, वो होते हैं आपके फॉर्मल पैरामीटर में। तो यदि मैं इस फंक्शन के अंदर जाके, है ना, एक बार आपने एक्स वाई जेड प्रिंट कर लिया है, अब हम एक काम करते हैं, हम एक्स को चेंज कर देते हैं, हम एक्स को चेंज कर देते हैं और यहाँ मैं एक्स की वैल्यू डिफॉल्ट डाल देती हूँ 6। ठीक है, कुछ भी वैल्यू रिसीव हो
नहीं, y की वैल्यू हम क्या डाल देते हैं 6। एंड अगेन यदि आप प्रिंट एफ लगाएं, यदि आप अगेन यहाँ प्रिंट एफ लगाएं तो देखते हैं क्या चेंज आता है। ठीक है, क्या चेंज आता है। और यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है PQR, PQR सम कैलकुलेट हो जाए, सम के बाद भी हम PQR देख लेते हैं आफ्टर फंक्शन कॉल, आफ्टर फंक्शन कॉल। हाँ, और ये हो जाएगा बिफोर फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपने बोला कि जो वैल्यू रिसीव्ड, यहाँ लिख देते हैं वैल्यू रिसीव्ड, है ना, जो रिसीव हुई वो प्रिंट हो रही है। और यहाँ हम लिख देते हैं आफ्टर चेंजेस, आफ्टर चेंज इन y, इन चेंज इन y। ठीक है, तो अब देखो कॉपी पास बाय जब वैल्यू होता है या पास बाय जब कॉपी होता है तो वैल्यू कॉपी तो होती है, बट जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर में। तो यदि मैं इस सॉरी फॉर्मल पैरामीटर में, तो यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करूं एंड आई हैव 3 वैल्यू, ठीक है, ये मैंने वैल्यू डाली 12, 23, 34। तो इनिशियली देखो बिफोर फंक्शन कॉल p क्या था 12 था, q क्या था 23 था, और r क्या था 34 था। ठीक है, तो 12, 23, 34 फंक्शन कॉल आया। ठीक है, फंक्शन कॉल आया, नाउ यू कैन सी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, है ना। यहाँ आपको वैल्यू मिली p इज 12, q इज 23, r इज 34। नाउ आपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल करोगे तो अब कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन पर। सो नाउ इट इज प्रिंटिंग दिस। तो वैल्यू क्या रिसीव हुई है, x को 12 रिसीव हुआ, y को 23 रिसीव हुआ, और z को 34 रिसीव हुआ, z को 34 रिसीव हुआ। नाउ आप क्या कर रहे हो, y इक्वल टू 6 कर रहे हो, y इक्वल टू 6 कर रहे हो, है ना। एंड अगेन आफ्टर चेंज इन y हम फिर से जब वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो आफ्टर चेंज इन y देखिए x क्या हो गया 12, y गेट अपडेटेड, y का वैल्यू 6 हो गया, है ना, y में चेंज हो गया। पहले रिसीव क्या किया था 23 रिसीव किया था, जब आपने चेंज किया तो y में चेंज होके 6 हो गया, बट इट इज नॉट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ q। q में कोई चेंज नहीं होता, चेंज कहाँ होता है आपके फॉर्मल पैरामीटर में। तो जो आपका वैल्यू कॉपी होता है वही चेंज होता है। एंड देन यू हैव r इज 34। ठीक है, r क्या बना, अगेन इट इज नॉट चेंजिंग, इट विल रिमेन सेम, z विल रिमेन सेम। अब जैसे ही आपने x कैलकुलेट किया और रिटर्न किया x, तो 40 रिजल्ट यहाँ पर रिसीव होगा, सम आपने प्रिंट किया। आफ्टर द फंक्शन कॉल p का वैल्यू वही रहा जो पहले था, q का वैल्यू वही है जो पहले था, एंड r वैल्यू इज सेम जो पहले था, बट है ना y की वैल्यू चेंज हो गई। क्लियर है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, तो इन कॉल बाय वैल्यू आप क्या बोलोगे, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में आप क्या बोलोगे कि when we have pass by parameter or pass by value, passing argument by value means content of argument in calling function are not changed, content कंटेंट ऑफ कॉलिंग फंक्शन, है ना, जो PQR आपने लिखा था वो चेंज नहीं हो रहा है ना, बिकॉज द, और ऐसा क्यों, क्योंकि हम कंटेंट को कॉपी करते हैं, हम कंटेंट को कॉपी करते हैं। दिस इज बिकॉज द कंटेंट ऑफ वेरिएबल इज कॉपीड फ्रॉम फॉर्मल पैरामीटर टू द फंक्शन डेफिनेशन, है ना, जो वेरिएबल है जो कंटेंट है वो कॉपी होता है। सो इट प्रिजर्व द कंटेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। चलिए, सो देख लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, यदि कोई डाउट है तो पूछेंगे।
डन। हाँ, प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छा रहेगा। सेकेंड इज पास बाय रेफरेंस। ठीक है, सेकेंड इज पास बाय रेफरेंस। अब रेफरेंस मतलब एड्रेस। ठीक है, सेकेंड इज रेफरेंस, रेफरेंस मीन्स एड्रेस। सो इन पास बाय रेफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर आपको क्लियर है। ठीक है, तो फॉर्मल और एक्चुअल आपको क्लियर है ना। देखिए मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, फिर से आपको समझा देंगे हम किससे, एक प्रोग्राम के हेल्प से। तो आई होप इट इज गोइंग टू बी क्लियर, है ना, एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका फंक्शन पैरामीटर। देखिए अभी क्या हुआ, जब आपने पास बाय वैल्यू किया था, ठीक है, तो आपने एक सम फंक्शन, ये मैं मान लेती हूँ कि ये आपकी डेफिनेशन है, ये आपकी डेफिनेशन है, इट हैव इंटीजर। और इस सम फंक्शन में आपने लिया था इंटीजर x, इंटीजर y एंड इंटीजर z। ठीक है, इंटीजर z। सो इट इज डेफिनेशन, दैट्स व्हाई इट इज फॉर्मल। ये आपके क्या थे, फॉर्मल थे, ये आपके फॉर्मल थे। ठीक है, तो x के लिए एक मेमोरी क्रिएट हुई होगी, y के लिए एक मेमोरी क्रिएट हुई होगी और z के लिए एक मेमोरी क्रिएट हुई होगी। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सम विद p कॉमा q विद r, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इन द मैन फंक्शन वी हैव फंक्शन कॉल फॉर पी क्यू आर। तो p के लिए एक मेमोरी क्रिएट हो रही है, q के लिए एक मेमोरी क्रिएट हो रही है एंड r के लिए एक मेमोरी क्रिएट हो रही है ना। लेट्स गिव सम, हाँ ये आपकी मेमोरी क्रिएट हो रही है। p का वैल्यू आप दे रहे हो 13, 23 एंड सपोज 7। तो यहाँ क्या होता है कि जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हो, जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हो, सो दीज वैल्यूज आर गोइंग टू बी कॉपीड। ठीक है, एक कॉपी होती है। तो जब आपने p में कॉपी किया, p को कॉपी किया, यहाँ से पास किया, इट इज गोइंग टू कॉपी इट इनटू x। तो x विल बिकम 13, q का वैल्यू 23 है, इट विल y विल बिकम 23 एंड r विल बिकम 7, r विल बिकम 7। तो जब आप y इक्वल टू 6 लिख रहे हो, जब आप y इक्वल टू 6 लिख रहे हो, तो चेंज क्या हो रहा है आपका y, ओनली y इज चेंजिंग, है ना, y की वैल्यू चेंज हो रही है। p q r विल रिमेन सेम, है ना, ये आपके सेम रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इनटू द एक्चुअल पैरामीटर जब आप करते हो कॉल बाय वैल्यू। लेकिन यदि यही काम हम पास बाय रेफरेंस करें, ठीक है, यदि यही काम हम पास बाय रेफरेंस करें, तो नाउ सी, अब आपका इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, पहले इंटीजर फंक्शन सम लिखेंगे, पास बाय वैल्यू के लिए हम जो रिसीवर देंगे, है ना, वो आपके, वो आपकी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल होना चाहिए, बिकॉज इट इज पास बाय रेफरेंस। तो हियर यू आर, वी आर राइटिंग इंटीजर x, है ना, इंटीजर पॉइंटर x, इंटीजर पॉइंटर y एंड इंटीजर पॉइंटर z, बिकॉज नाउ इट इज पास बाय रेफरेंस। हम एक एड्रेस पास करेंगे, ठीक है, एड्रेस पास करेंगे। सो नाउ इन दिस, suppose I will write the value of z should be equal to value of x plus value of y। ठीक है, वैल्यू ऑफ z क्या होना चाहिए, it should be equal to x plus y। ओके, एंड रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको हम void लिख लेते हैं, सम लिख लेते हैं, सिंपली void सम। अब हम करेंगे इन द मैन फंक्शन, फंक्शन को कॉल। ठीक है, तो यहाँ आप लेंगे 3 वेरिएबल p q r। p q, सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया, इसका एड्रेस है 2002, q का एड्रेस है 3003। ठीक है, एंड r का एड्रेस अज्यूम कर लेते हैं 4004। सपोज p को वैल्यू असाइन कर रहे हो 10, q को वैल्यू हो जाएगी 20 एंड r का वैल्यू हो जाएगा 30। ठीक है, r का वैल्यू होगा 30। रिटर्न ही कर लेते हैं, रिटर्न। यहाँ हम सम लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, सम इक्वल टू
सम एक वेरिएबल है, एंड देन दैट रिजल्ट वी विल रिटर्न, ठीक है, दैट रिजल्ट वी विल रिटर्न। ओके, तो यदि आपने बोला कि P10 है, Q20 है एंड R30 है, तो अभी आप बिफोर द फंक्शन यदि आप इसको कॉल करोगे तो आपको मिलेगा P10, Q20 एंड R30। सपोज इनसाइड द फंक्शन, ठीक है, इनसाइड द फंक्शन मैं यहां पर लिख दूं कि वैल्यू ऑफ y इज 6, वैल्यू ऑफ y क्या है, 6 है। तो अब देखिए y में एड्रेस किसका है, y में एड्रेस किसका है, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो इस तरीके से लिखेंगे, सम एड्रेस ऑफ p, एड्रेस ऑफ q, एड्रेस ऑफ r, ठीक है। तो यस, y विल हैव एड्रेस ऑफ q। तो जब आप लिख रहे हो तो वैल्यू ऑफ y है ना, वैल्यू एट y, तो इसका मतलब है वैल्यू एट y का वैल्यू क्या है, इट विल कंटेन द एड्रेस 3003। so value at 3 should get updated and it will become 6, ठीक है, ये वैल्यू 6 अपडेट हो जाना चाहिए एंड इट शुड बिकम 6, ठीक है। तो नाउ जो चेंजेस होते हैं, नाउ जो चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर में। इट इज एक्चुअल पैरामीटर इज चेंजिंग व्हेन वी विल कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, जब आप कॉल बाय रेफरेंस करते हो तब आपके एक्चुअल पैरामीटर चेंज होते हैं, ठीक है, तब आपके एक्चुअल पैरामीटर चेंज होते हैं। क्लियर है भाई, है ना। ठीक है, चलिए कर लेंगे ये दोनों कॉन्सेप्ट। है ना, एनी डाउट। देखिए एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ, ठीक है, बट आई होप कि ये क्लियर है आपको। तो ये आपका एग्जांपल है पास बाय वैल्यू का, ठीक है, पास बाय वैल्यू इंटीजर एक्स वाई है ना। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, हियर यू आर पासिंग बाय वैल्यू ए और बी, तो ये हो जाएगा आपका बिफोर, एक्चुअली सी प्लस प्लस में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिफोर फंक्शन कॉल एंड आफ्टर फंक्शन कॉल। तो ए और बी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, है ना, इट विल रिमेन सेम। अच्छा ये आपका सी प्लस प्लस चला गया, एक काम करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। ओके,
हाँ सी, देखिए इज इट क्लियर? ठीक है, स्क्रीन ठीक है। तो देखिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ पास बाय रेफरेंस, ये पास बाय रेफरेंस का एग्जांपल है। हियर वी हैव ए एंड बी, दैट इज एक्चुअल पैरामीटर। तो बिफोर फंक्शन कॉल ए का वैल्यू 10 है एंड बिफोर फंक्शन कॉल बी का वैल्यू क्या है, 20 है। नाउ एज आई एम पासिंग द एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ क्या हो रहा है, इंटीजर आई हैव एड्रेस ऑफ ए एंड बी, पॉइंटर जे हैव एड्रेस ऑफ बी। जब आप स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हो, इट इज मेकिंग चेंजेस एट द एक्चुअल लोकेशन पर चेंज हो रहा है। सो आफ्टर फंक्शन कॉल बी, ए का वैल्यू क्या हो गया 20 एंड बी इज 10। सो दिस इज व्हाट कॉल बाय रेफरेंस है ना, ये आपका क्या बना, कॉल बाय रेफरेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपका क्या बना, कॉल बाय रेफरेंस। है ना, चलिए। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका रिकर्सन। ठीक है, रिकर्सन क्या होता है भाई, व्हाट इज रिकर्सन? व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इट इज कॉल्ड द रिकर्सन। इसको आप क्या बोलते हो, रिकर्सन। So if I have man function, now you can see man is calling itself. So it is an example of recursion, even though it is the example of infinite function call. ठीक है, कभी never ending terminating program है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि man again man को कॉल करेगा and this program will never terminate. So ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो रिकर्सन व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इट इज कॉल्ड द रिकर्सिव फंक्शन। जनरली जब हम गेमिंग की बात करते हैं, जनरली हम जब डू वाइल वाइल की बात करते हैं, तो हम रिकर्सन का यूज करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले ये बताइए स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, चलिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज योर रिकर्सन। ठीक है, नाउ यहाँ मैं एक डेफिनेशन की बात कर रही हूँ, फैक्टोरियल प्रोग्राम की हम बात करेंगे, है ना। तो नॉर्मली जब आप फैक्टोरियल फंक्शन लिख रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर राइटिंग द फैक्टोरियल फंक्शन, सो इफ नम इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1 है, अदरवाइज ये पहले हम कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं रिकर्सन का। तो पहले फर्स्ट वी हैव टाइप ऑफ रिकर्सन, डायरेक्ट रिकर्सन। डायरेक्ट रिकर्सन मीन्स व्हेन अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ डायरेक्टली, मैन अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ डायरेक्टली, इसको आप क्या बोल देंगे, इट इज योर डायरेक्ट रिकर्सन। ये आपका क्या बन जाएगा, इट इज योर डायरेक्ट रिकर्सन। सो लाइक फन इज कॉलिंग इटसेल्फ, ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट रिकर्सन। इनडायरेक्ट क्या होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट क्या होगा, सो लाइक यू कैन सी fun1 is a function that calling fun2, but inside the fun2 again I am calling back to fun1। ठीक है, अगेन आप किसको कॉल कर रहे हो, fun1 को। ठीक है, आप अगेन किसको कॉल कर रहे हो, fun1 को। सो दिस इज व्हाट, ये आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट रिकर्सन। ठीक है, इसको आप क्या बोलने लगोगे, इट इज योर इनडायरेक्ट रिकर्सन। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट रिकर्सन है। नाउ अनदर टाइप ऑफ रिकर्सन इज लीनियर, लाइक दिस वन, है ना, जहां हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो दिस इज फंक्शन एंड ये अपने आप को कॉल करते जा रहा है, सो इट इज कॉल्ड द लीनियर रिकर्सन।
A function call itself each time function is invoked and grow linearly in proportion to the size of problem. ठीक है, तो जैसे या तो आप हर बार क्या करो, n-2 करते जाओ, n-3 करते जाओ, लाइक दिस. ठीक है, डिक्रीमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, और यू आर गोइंग टू डिवाइड, परफॉर्म द डिवाइड ऑपरेशन. तो n/2 के लिए कॉल कर लिया, नेक्स्ट टाइम n/3 के लिए कॉल कर लिया, नेक्स्ट टाइम n/4 के लिए कॉल कर लिया. सो एवरी टाइम, है ना, इट इज गोइंग टू चेंज लीनियरली. एक लीनियर चेंज होता है, so उसको आपने बोल दिया लीनियर रिकर्सन. इट इज योर लीनियर रिकर्सन. नेक्स्ट इज टेल रिकर्सन. तो लाइक यू कैन सी कि इन दिस फंक्शन, है ना, आपने कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट दिए एंड देन एट द लास्ट आपने कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट दिए, और एंड में जाकर जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो इटसेल्फ, है ना, फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ बट एंड ऑफ द स्टेटमेंट, तो इसको आपने बना दिया टेल. ठीक है, यह क्या हो जाएगा आपका टेल रिकर्सन, है ना. लास्ट में आपका कहीं जाके फंक्शन कॉल हो रहा है, लास्ट में कहीं जाके आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, टेल रिकर्सन. टेल रिकर्सन. सो दीज आर द टाइप ऑफ रिकर्सन. ठीक है, अभी मैं एग्जांपल नहीं दिया मैंने, बट हाँ आपको बेसिक टाइप समझाया. ओके, रिकर्सन का व्हाट वी विल डू, आपको डेफिनेशन तो क्लियर है ही, हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे रिकर्सन. ठीक है, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेशन में रिकर्सन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. अब आपका एक आ जाता है व्हाट आई टोल्ड यू, कि जब आप पॉइंटर की बात करते हो, ठीक है, पॉइंटर की बात करते हो, सो यू कैन राइट पॉइंटर फॉर अ वेरिएबल, पॉइंटर फॉर अ अरे, पॉइंटर फॉर स्ट्रक्चर, पॉइंटर फॉर यूनियन, ये सब हमने कॉन्सेप्ट लर्न कर लिए. नाउ हियर एज वेल आई कैन राइट पॉइंटर फॉर अ फंक्शन. ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन राइट अ पॉइंटर फॉर अ फंक्शन. सो बेसिकली देखिए, जो फंक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है, फंक्शन का फंक्शन एड्रेस इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मशीन लैंग्वेज कोड ऑफ द फंक्शन स्टोर्ड इन द मशीन. सो वी कैन असाइन दिस एड्रेस टू अ पॉइंटर. हम इस एड्रेस को एक पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं, एंड नाउ थ्रू दैट पॉइंटर नेम आई कैन कॉल द फंक्शन. मुझे फंक्शन कॉल करने के लिए अब फंक्शन के नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है. what I can do, I can simply call the function with the pointer name. ठीक है, with the pointer name. तो now देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है कि आई एम डिक्लेयरिंग अ फंक्शन पॉइंटर. ठीक है, तो फंक्शन के लिए पॉइंटर कैसे डिक्लेयर होगा. नाउ वट एवर इज द रिटर्न टाइप, इंटीजर है तो आपको अपने पॉइंटर का रिटर्न टाइप इंटीजर देना होगा. ठीक है, इफ इट इज इंटीजर वी विल स्पेसिफाई द इंटीजर. देन इंस्टेड ऑफ फंक्शन नेम वी विल राइट द पॉइंटर नेम, है ना. इंस्टेड ऑफ फंक्शन नेम हम क्या लिख रहे हैं, पॉइंटर नेम, एंड देन द पैरामीटर लिस्ट. यदि आपने यहाँ डबल लिया है, पॉइंटर डिक्लेरेशन शुड हैव डबल. इफ यू आर यूजिंग इंटीजर, यहाँ पर भी आपको इंटीजर देना होगा. सो रिटर्न टाइप, द पॉइंटर वेरिएबल नेम एंड द आर्ग्यूमेंट whatever is present in the actual function. ठीक है, तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस आ रहा है कि आप फंक्शन की जगह पॉइंटर का नेम दे रहे हो, बट सी दिस पॉइंटर में हैंडल एनी नंबर ऑफ फंक्शन. ठीक है, एनी नंबर ऑफ फंक्शन इफ इट्स डेफिनेशन इज सिमिलर. लाइक यहाँ पर दो फंक्शन लिखे हुए हैं, टेस्ट एंड टेस्ट1, इनका रिटर्न टाइप भी सिमिलर है और इनका आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी सिमिलर है. सो बाय मेकिंग अ सिंगल पॉइंटर, by making of single pointer of same type, I can handle both of these function. मैं ये दोनों फंक्शन हैंडल कर लूंगी. ठीक है, both of these function can be handled. both of these function can be handled. भाई कोई इश्यू तो नहीं हो रहा ना स्क्रीन वगैरह में. सो दिस इज व्हाट द, ये आपका क्या बनेगा,
ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, श्रेया मैम, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, अब हम क्या कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वी वांट टू यूज पॉइंटर टू अ फंक्शन, है ना, हमको एक पॉइंटर बनाना है सो दैट वी कैन यूज पॉइंटर to call a function, to invoke a function. With the help of pointer to a function, we can invoke the function without the function name. ठीक है, अब आपको फंक्शन नेम देने की जरूरत नहीं है. So address of function can be passed as argument to the other function as well, and by using the function name or the pointer name. तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, ठीक है. नाउ यू कैन सी, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि आप पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हो. तो जब आपको पॉइंटर क्रिएट करना है, जब आपको किसी भी फंक्शन के लिए पॉइंटर क्रिएट करना है, तो दोनों का रिटर्न टाइप सिमिलर होना चाहिए और दोनों की पैरामीटर लिस्ट सिमिलर होना चाहिए. इफ इट इज इक्वल देन इट विल वर्क एज अ पॉइंटर टू दिस फंक्शन, but it can also work pointer to this function because parameter list and return type similar है, ठीक है. So now you can see like मेरे पास दो फंक्शन है, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2. फंक्शन 1 का रिटर्न टाइप है void, बट इसमें जो पैरामीटर है वो इंटीजर i और फ्लोट लिया है, एंड प्रिंट एफ हम i और f करा रहे हैं. फंक्शन 2 में आपने एक कैरेक्टर स्ट्रिंग लिया है, ठीक है. तो नाउ यू कैन सी कि व्हेन आई एम डिक्लेयरिंग द पॉइंटर टू द फंक्शन 1, देखिए जब हम फंक्शन 1 के लिए पॉइंटर लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, void, रिटर्न टाइप सेम है, यहाँ पॉइंटर का नाम दिया, यहाँ फंक्शन का नाम है, पैरामीटर लिस्ट इज ऑल्सो सेम, ठीक है. नाउ सेकेंड आई एम डिक्लेयरिंग द पॉइंटर फॉर फंक्शन 2, void इज अ रिटर्न टाइप, ठीक है. एंड मुझे कैसे पता ये फंक्शन 2 का पॉइंटर है, बिकॉज अगेन द पैरामीटर लिस्ट इज सेम. तो ये आपने दो पॉइंटर बना दिए p एंड q, p फॉर फंक्शन 1 एंड q फॉर फंक्शन 2. फ्लोट वैल्यू लिया है ना, इनिशियलाइज कर लिया i और f को. नाउ कैरेक्टर s को भी इनिशियलाइज कर दिया हेलो. नाउ p में आपने लिखा func1, so this line will assign the address of function 1 to the p. अब ये लाइन क्या कर रही है, इस लाइन में आप फंक्शन 1 का एड्रेस डाल रहे हो इनटू द p, बिकॉज p इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप फंक्शन 1. यदि आप p इक्वल टू func2 लिखोगे, इट विल बी एरर. आप देख पा रहे हो कि इनका डिक्लेरेशन हमने अलग अलग तरीके से किया है, इनका जो आर्गुमेंट लिस्ट है वो डिफरेंट है. तो यदि p will work only for the man function and q will work only for the function 2, तो यदि आपने q के हेल्प से फंक्शन 1 कॉल किया इट विल बी एन एरर, और p के हेल्प से फंक्शन 2 कॉल किया इट विल बी एन एरर. नाउ सिंपली p is a function pointer, I is a parameter and f is a parameter. Now you are calling the function func1 with pointer, आप पॉइंटर की हेल्प से कॉल कर रहे हो, with function 2 with the help of pointer qs. Is it clear? ठीक है, समझ में आया how the pointer is working for the function, भाई बताइए, रिपीट करना है, क्लियर है ना. चलिए, एक यूजीसी नेट अगस्त 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि दिस इज अ सी स्टेटमेंट, ठीक है, आपका सी स्टेटमेंट है. हियर वी हैव इंटीजर, देन दिस इज द कि ये फंक्शन अरे है, ठीक है, ये पॉइंटर अरे हो गया, इंटीजर इज अ रिटर्न टाइप. देन ये आप क्या बना रहे हो, इट इज अ काइंड ऑफ पॉइंटर, और पॉइंटर के आगे लगा दिया स्क्वायर, सो इट इज अ अरे ऑफ फंक्शन. ये क्या बना, अरे ऑफ फंक्शन. So what? A function returning a pointer to an array of integer, a function
an array of function returning pointer to the integer, a function returning an array of pointer to integer, an illegal statement. इलीगल स्टेटमेंट, आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन 2, अरे ऑफ फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले ये फंक्शन है, ये अरे ऑफ फंक्शन, और रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। ठीक है, रिटर्निंग अ पॉइंटर टू एन अरे ऑफ इंटीजर, रिटर्निंग अ पॉइंटर, पॉइंटर का टाइप क्या है? इंटीजर, सो अरे ऑफ पॉइंटर। वेरी गुड सोनिया मैम। ठीक है, सो दिस इज द सेशन अबाउट फंक्शन एंड रिकर्सन। रिकर्सन और फंक्शन का बहुत सारा प्रैक्टिस हमको करना होगा। ठीक है, and tomorrow I will discuss the remaining topic of C programming, then we will start the C++। ठीक है, C++ हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट हमारा, and then we will start the next subject। CG मैं सितंबर में करवाऊंगी आपको। ठीक है, सितंबर में। चलिए, एनी डाउट क्वेरी हियर? मैम इसको किसी भी ऑर्डर में लिखिए, एक ही चीज है। ठीक है, अरे बना रहा है। ठीक है, अरे है, दिस इज द अरे। अरे किसका बन रहा है? दो फंक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शन, और रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। सो अरे ऑफ फंक्शन, अरे ऑफ फंक्शन, अरे ऑफ फंक्शन, रिटर्न टाइप क्या होगा? इंटीजर टाइप के पॉइंटर्स को। ठीक है, पॉइंटर टू द इंटीजर्स। हाँ, प्रैक्टिस करना है, आज का भी प्रैक्टिस सेशन देखिएगा आप। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन एंड करूं फिर? ओके, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं। ठीक है, एट 5 PM। ओके, थैंक यू।